Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss uh, question answer of chapter 8 part 1 related to the reach of the top. In this part we shall discuss the question related to Santosh Yadav. Now I read the first question for you. Why was the holy man who gave Santosh's mother his blessing surprised? Whosoever in form of holy man, in form of a saint, when he saw the mother of Santosh Yadav, who was in pregnancy, by watching her, he gave the blessing to her mother that she should have a boy child. But when Santosh's grandmother listened that saint gave the blessing of a boy, she told him that he should give the blessing of a daughter because they like to have a daughter in their family. So by listening the wording of Santosh Yadav's grandmother, he was so surprised because in real life all the people like to have a boy child in their family, but she was demanding for a girl child. यानी वो साधु महात्मा जिसने संतोष यादव की मदर को आशीर्वाद दिया था कि आपके घर लड़का जन्म ले, तो वो हैरान क्यों हुआ, ये क्वेश्चन था. तो वो हैरान इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही उसने संतोष यादव की मदर को देखा, उसको देखकर जैसे उसने ये आशीर्वाद दिया कि आपके घर लड़का पैदा हो, तो संतोष की ग्रैंड मदर ने जैसे ये बात सुनी, उसने कहा कि लड़का नहीं, हमें लड़की चाहिए. ये बात सुनकर वो साधु महात्मा बहुत ही हैरान हुआ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज संतोष सेंट टू लोकल स्कूल? संतोष को लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया? इट वॉज अ ट्रेडिशन in that village at that time that girls were sent in local school of their village. So because of that tradition, Santosh Yadav was also sent in local school. Actually their parents were so affluent, so rich, that they could send her in one of the reputed school of Delhi, but they didn't send her in Delhi. Because of the tradition of the village, they sent her in the local school. तो सेकंड क्वेश्चन था कि संतोष यादव को लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया, यानी गांव के स्कूल में क्यों भेजा गया? क्योंकि ये उस समय वहाँ की ट्रेडिशन थी, वहाँ की जो है प्रथा थी कि जो लड़कियाँ होती थी उनको गांव के स्कूल में ही पढ़ने भेजा जाता था. इसलिए उसके पेरेंट्स धनवान होते हुए भी संतोष यादव को उसके पास वाले स्कूल में, यानी उसके गांव के स्कूल में ही भेजा गया. उसके पेरेंट्स उसको दिल्ली भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने गांव की प्रथा को कायम रखते हुए उसको गांव के स्कूल में ही भेजा. क्वेश्चन थर्ड विच आई रीड फॉर यू, दैट इज when did Santosh have home for Delhi? There is mistake in this question. When did Santosh left home for Delhi and why? Leave Delhi for. When did Santosh leave home for Delhi? It's leave, not have. Question is right. Mistake was there in reading. When did संतोष leave home for Delhi and why? यानी संतोष ने दिल्ली के लिए घर कब छोड़ा और क्यों छोड़ा? संतोष left home for Delhi at the age of 16 years because during that age their parents started to pressurize her for doing marriage, but she did not want to marry with any other person
without getting higher education. So she left home for getting higher education and she took admission in one of the college in Delhi. तो उसने फॉर गेटिंग हायर एजुकेशन यानी 16 ईयर की एज में उसने घर को छोड़ दिया दिल्ली जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय उसके पेरेंट्स जो है उसको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया था कि वो जल्दी से शादी कर ले, इसलिए उसने घर से भागने का, घर को छोड़ने का जो है प्लानिंग की और वही अच्छी समझी ताकि वो वहाँ जाकर हायर स्टडी गेन कर सके। Question 4. Why did Santosh parent agree to pay for her schooling in Delhi? संतोष के जो पेरेंट्स हैं वो क्यों सहमत हुए उसकी स्कूलिंग की फीस देने के लिए दिल्ली में? What mental quality of Santosh are brought to light by this incident? यस, संतोष के पेरेंट्स जो है उसकी स्कूल फी देने के लिए कैसे तैयार हुए? व्हेन संतोष यादव टुक एडमिशन इन दिल्ली एट दैट टाइम देयर वाज द क्वेश्चन ऑफ फी एट दैट टाइम, सो शी wrote a letter to her parents by saying that if they didn't pay her school fees, then she herself would pay the school fee by doing a part-time job in any company, at any place. So, by watching such type of situation, her parents agreed to pay her school fee. यानी संतोष ने जैसे ही एडमिशन लिया तो स्कूल फीस पे करने के लिए उसने अपने पेरेंट्स को लेटर लिखा और बताया कि अगर वो उसकी स्कूल फीस जमा नहीं करवाएंगे तो वो खुद ही अपनी पार्ट टाइम जॉब करके स्कूल फीस पे करेगी। इसमें सेकंड पार्ट है व्हाट मेंटल क्वालिटीज ऑफ संतोष आर ब्रॉट टू लाइट बाय दिस इंसिडेंट। इस घटना से संतोष यादव की कौन सी मानसिक विशेषता जो है हमें दिखाई देती है? बाय दिस इंसिडेंट वी केम टू नो दैट संतोष यादव हैड टू मच स्ट्रॉन्ग विल पावर, बिकॉज ऑफ दैट रीजन शी वांटेड टू डू वट एवर शी लाइक्ड। तो इस घटना से हमें ये पता चलता है कि संतोष यादव में जो विल पावर थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, इच्छा शक्ति बहुत ही दृढ़ थी। क्यों? क्योंकि वो जो सोच लेती थी वो उस काम को पूरा करके दिखाती थी। तो इस घटना से हमें यही पता चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन? यानी संतोष ने माउंटेन पर चढ़ना कैसे शुरू किया? When Santosh Yadav saw some of the farmers, some of the people while climbing Aravalli Hills, at that time she requested them to accompany and they permitted her to climb. In this way she started to climb mountains. संतोष यादव ने जो है कुछ माउंटेनियर्स को अरावली हिल पर चढ़ते हुए देखा, उनको देखकर वो उनसे मोटिवेटेड हुई, उनसे प्रेरणा उसने ली पहाड़ों पर चढ़ने की। और एक दिन वो जो है अरावली हिल पर पहुंच गई और उसने गांव वालों से रिक्वेस्ट की, क्या नाम है, चढ़ने के लिए अरावली पर। तो वो जो है उसको उन्होंने परमिशन दी, उसको इजाज़त दी और इस तरह से उसने अरावली हिल पर चढ़ाई की और उससे उसके अंदर मोटिवेशन पैदा हुई, प्रेरणा पैदा हुई पहाड़ों पर चढ़ने की। तो वहाँ से उसने पहले ट्रेनिंग ली। नेक्स्ट है व्हाट इंसिडेंट ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन सो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स? यानी
छठा क्वेश्चन है कि कौन सी घटना ये बताती है कि संतोष जो है अपने टीममेट्स के प्रति बहुत ही कंसर्न थी, बहुत ही चिंतित थी। सो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1992 व्हेन शी ट्राइड हर बेस्ट टू रीच ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन फॉर्म ऑफ माउंट एवरेस्ट, एट दैट टाइम when one of the teammates did not feel well, at that time she tried to save him, to protect him as per her own effort, but due to bad luck she couldn't protect him. Unfortunately, the second climber also found that he didn't have enough oxygen in his oxygen cylinder. At that time, she shared her oxygen with that person who was there in form of Mohan Singh, to whom she could be able to protect. In this way, we can say that she was very concerned about her teammates. तो हम कह सकते हैं कि वो अपने टीममेट्स के प्रति बहुत ही चिंतित थी, क्योंकि 1992 में जब उसने संसार के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की तो उस समय एक फेलो क्लाइंबर को तो वो नहीं बचा सकी, लेकिन दूसरा फेलो क्लाइंबर जिसने अपने ऑक्सीजन जिसकी सिलेंडर की ख़त्म हो गई थी, तो जैसे ही उसने संतोष यादव से हेल्प मांगी तो उसने उसके साथ अपनी ऑक्सीजन अपने सिलेंडर से शेयर की, और इस तरह से वो उस दूसरे फेलो क्लाइंबर को बचाने में कामयाब हुई। तो ये घटना हमें बताती है कि वो अपने फेलो क्लाइंबर के प्रति कितनी चिंतित थी। क्वेश्चन 7, व्हाट शोज संतोष कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, यानी 7th क्वेश्चन है कि क्या घटना संतोष की चिंता को बताती है एनवायरनमेंट के प्रति, यानी वो वातावरण के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। वो कौन सी घटना है जो उसकी गंभीरता को शो करती है। सो वी कैन से दैट व्हाइल कमिंग बैक संतोष यादव brought 500 kg of garbage from the highest peak in form of Mount Everest. So this shows that she was very concerned about environment. वो वातावरण के प्रति बहुत ही चिंतित थी, बहुत ही गंभीर थी। वो कैसे पता चलता है क्यों वो उस घटना से पता चलता है जब संतोष यादव अपने साथ 500 किलो वज़न का गार्बेज यानी कचरा माउंट एवरेस्ट पर से लेकर आई, जिसमें प्लास्टिक कप्स, प्लास्टिक बोतल्स ये सब शामिल थे। तो इससे पता चलता है कि संतोष यादव वातावरण के प्रति कितनी सजग थी, कितनी केयरफुल थी, कितनी सावधान थी। Question 8. How did Santosh feel when she found herself on the top of the world at the summit of the Everest? यानी संतोष को कैसा महसूस हुआ जब वो संसार के छत पर पहुंची, उस माउंट एवरेस्ट पर पहुंची, तो उसे कैसा महसूस हुआ। Santosh Yadav, by standing on the top of the world, was very happy. She had lot of happiness in her heart at that time, and she had the emotion of patriotism. उसमें patriotism means देशभक्ति की भावना उसमें जागी, and she felt so happy, she felt so proudful as an Indian when she unfurled the tricolor on that highest peak. जब उसने सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के ऊपर इंडियन फ्लैग को अनफर्ल किया, अनफर्ल मीन्स फहराना, इंडियन फ्लैग को फहराया, तिरंगे को फहराया, तो उसे बहुत ही गर्व महसूस हुआ। एंड शी वॉज सो हैप्पी दैट शी एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, और वो बहुत ही खुश महसूस उसने अपने आप को किया, क्योंकि उसे आध्यात्मिक खुशी मिली, यानी मेंटल सेटिस्फैक्शन, मानसिक संतुष्टि मिली कि उसने जो
बात उसने ठानी थी वो पूरी हुई। एंड शी फाउंड इट हार्ड टू कंट्रोल फीलिंग एट दैट टाइम, और उसने अपने आप को, अपनी भावनाओं को रोकना उस समय बहुत मुश्किल था उसके लिए, कि कितनी ज़्यादा भावनाएं उसके दिल में पनप रही थी उस समय। सो दिस वाज क्वेश्चन 8। नाउ क्वेश्चन 9। संतोष यादव गॉट इनटू द रिकॉर्ड बुक बोथ टाइम शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। संतोष यादव जो है, दोनों बार जब उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया तो दोनों बार उसने रिकॉर्ड कायम किया। तो वो क्या रिकॉर्ड किया? संतोष यादव, when she climbed the Mount Everest first time, she made a record to be a youngest girl to climb upon the Mount Everest first time। पहली बार संतोष यादव जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी तो उसने संसार में सबसे छोटी लड़की का खिताब जीता, सबसे छोटी लड़की का रिकॉर्ड बनाया जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। एंड सेकेंड टाइम व्हेन शी क्लाइम्ड अपॉन द माउंट एवरेस्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, एट दैट टाइम शी मेड हर रिकॉर्ड एज अ वुमेन हु could be able to get success in climbing of Mount Everest second time। और दूसरी बार जैसे उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की तो उस बार उसने माउंट एवरेस्ट पर एक ऐसी औरत बनने का रिकॉर्ड बनाया जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया हो, 2 बार जीता हो, 2 बार कनकर किया हो। सो दीज वर द रिकॉर्ड विच वर मेड बाई संतोष यादव टू कॉन्कर दैट माउंट एवरेस्ट। ये थे उसके रिकॉर्ड दोनों माउंट एवरेस्ट को जीतने के। ओके, थैंक यू।